नमस्कार, दिस इज अयनजीत सेन हियर फॉर फ्लेक्सबर्ग सिने। आज मेरे साथ जो दो ऐसे डायरेक्टर्स हैं, फिल्म डायरेक्टर्स ऐसे दो हैं जो कि बंगाल से आए हुए हैं, लेकिन मुंबई में कंपन शुरू हो गई है और वो कंपन जो कि अगले आने वाले उनके कुछ फिल्मों के ऊपर बेस्ड है। मिलाते हैं हम आपको जेनी सरकार, Hello. दीपायन मंडल। Hi. So, Jenny, tell us a bit about how you landed in Mumbai first. In 2018, we just landed November something, November, end of 2018. तो ये कोविड से पहले था। हम हैप्पी थे, बहुत अच्छे लोग हैप्पी थे, पूरा वर्ल्ड हैप्पी थे, सब लोग हैप्पी थे। सो हम जब लैंड किया तो एक ड्रीम लेके, जो ड्रीम्स सिटी बोलते हैं इनको, तो ड्रीम लेके आए थे। और अभी तक जो है जो एक्सपेक्टेशन था उससे लिटिल बिट कम है, क्योंकि बहुत बड़ा एक पैंडमिक बीच में गया है जो बहुत ही डेंजरस था वो। तो ठीक है, ओके। अभी तक 2018 से 2023 का मतलब शुरुआत है। जर्नी जो है बहुत ही अच्छा है और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सक्सेसफुल है। Now, before coming to the forthcoming films जो आपके आने वाले हैं, उनके पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। বাংলাতে কিন্তু এবার তো বাংলার দিক থেকে একটু আপনারা যেহেতু টলিউডে কিছুদিন কাটিয়েছেন, তো কি কি ফিল্ম হয়েছে টলিউডে যদি একটু বলতে পারেন। Basically, we start from our film institute. আমরা রূপকলা কেন্দ্র, যেটা film institute, ডিজিটাল film institute, সেখান থেকে পাস আউট ফিল্ম ডিরেকশন। আফটার দ্যাট 2014 আমরা ফার্স্ট ছবি আমাদের রিলিজ হয়, তিন পাত্তি, যাতে ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত, পূজা, ঋত্বিকদা তিনজনই ছিল, এবং সেটা সাকসেসফুলি রিলিজ হয়েছিল এবং সেটা সাকসেসফুলি চলেও ছিল। আফটার দ্যাট আমরা 2017 একটা ফিল্ম বানাই, যেটার নাম হচ্ছে আমার সঙ্গে। 16 আমরা 16 থেকে শুটিং শুরু হয়। আর 2017 আমরা আরেকটা প্রজেক্ট করি, জিঙ্গেল বেল, যেটা অ্যাক্সিডেন্টালি এখনো পোস্ট প্রোডাকশনে আছে, বাট আমার শহর আই থিঙ্ক বাট ইজ আ রিলিজ। আর আফটার আমার শহর তো খুব ভালো মানে সাড়া ফেলেছিল কাস্টিং, পুরো বাংলাদেশে। আমাদের casting দুটো ফিল্মে খুব ভালো কাস্টিং। অ্যান্ড থার্ড ফিল্মও मतलब जिंगल में যেটা এখনো জানে না লোকে বেশিরভাগই শুটিং অলমোস্ট 70%। কারণ আমার নিজের আমার শহরের আমার মানে নিজের দিক দিয়ে যদি বলি, তাহলে একটা গান আমার খুবই প্রিয়। তো আমি সবসময় যখনই বম্বেতে আসি, কোনো না কোনো ভাবে সেই গানটা কোনো না কোনো ভাবে শুনি। সো ইটস সামথিং লাইক ইট অলওয়েজ। বেসিক্যালি বাংলা তো আমাদের রুট, বাংলাকে তো ভোলা যাবে না। আর প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাদের মুম্বাই আসার পেছনে কারণটা ক্রিয়েটিভ কারণ না, কারণটা হচ্ছে যে আমরা যে পার্সপেক্টিভ থেকে সিনেমাটাকে দেখি, সেটাকে যদি সাকসেসফুলি আরো মেকিংটা করা যায়, তাহলে সেটার জন্য বলিউড ইজ দ্য লাস্ট ওয়ে। তো আর বলিউড মানে কি, একটা কমার্শিয়ালিটি আছে একটা সিনেমার, কিন্তু যদি আর্টের জায়গা থেকে দেখা যায় তাহলে বাংলার চেয়ে বেটার হতেই পারে না। মানে এখন তো বেঙ্গলি, মালায়ালাম, মারাঠি, এই তিনটে রিজিওনাল ফিল্মস পুরো ইন্ডিয়াতে এরা প্রশংসিত, কারণ তাদের আর্টের জন্য এবং ক্রিয়েটিভিটির জন্য। বাট বলিউডের যেটা আছে কি, বলিউডের আমি যাই বানাবো, ইটস উইল বি কমার্শিয়ালি বানাবো, এবং এটা একটা তাড়াতাড়ি লোককে গ্র্যাব করতে পারে, যেটা বলিউডের খাসিয়াত। अब हम आने वाले हैं হিন্দি की तरफ। তো মুম্বাইয়ে আপনারা বিরাজমান হয়েছেন এতদিন, স্ট্রাগল করেছেন অনেকদিন। তবে এটা বলবো যে এট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে जो फल मीठा होता है वही चीज अल्टीमेटली सबर का फल तो मीठा होता ही है। तो उस सेंस में अगर हम देखा जाए, अब ये चीज देखा जाए, तो जो आपके आने वाले फिल्म है बूंद, सो बूंद के बारे में थोड़ा सा अगर आप रोशनी डाल सके तो। हाँ, बूंद के बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगी। बूंद बेसिकली वाटर क्राइसिस के ऊपर मूवी है, जो नेक्स्ट 10 इयर्स के बाद पूरा वर्ल्ड का क्राइसिस बनने वाला है। ह्यूजली ऑलरेडी वर्ल्ड में और देश में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो वो बुंदेलखंड के ऊपर एक वाटर क्राइसिस के ऊपर एक फिक्शन मूवी है, ट्रू इवेंट के ऊपर। बेसिकली रियल में हुआ था। एक औरत ने पूरा
गांव को हिला दिया था, जो इमरती बाई बोल के एक लेडी ने, उसका ही इट्स नॉट दैट बायोग्राफी, जस्ट इंस्पिरेशन स्टोरी है। एंड सारे जो स्क्रिप्ट का जितना भी है वो पूरा रियल इवेंट से जुड़े हैं, पर इसे नॉट दैट कि फुल, पहले हमने प्रेजेंट किया इस रॉ मूवी, पर इसे फिक्शन एंड लिटिल बिट कमर्शियल मूवी, नॉट दैट कि वो जो आर्ट मूवी একদমই নয়। एंड बाकी कास्टिंग भीषण सुंदर। हाँ, कास्टिंग के बारे में थोड़ा सा अगर आप रोशनी গোবিন্দ রামদেব জি আছে আমাদের, বেদিতা বাগ আছে, शमिष्का भटनागर, रोहित चौधरी खूब ভালো एक्टर एनएसडी থেকে, नेहपल गोपाल बोल के जो पूरा एनएसडी से है और अच्छा एक्टर भी है। কাস্টিং খুবই ভালো আর কি আমাদের কন্টেন্টের হিসেবে। আর এখনো পর্যন্ত যেটুকু প্রেজেন্টেশন আমরা দেখছি যা হচ্ছে পোস্ট প্রোডাকশনে আছে, কিন্তু ফুললি স্যাটিসফাই না, কারণ কোনো ডিরেক্টরই ফুললি স্যাটিসফাই হতে পারে না, যেটা স্ক্রিপ্ট লেভেলে থাকে সেটাকে আমরা শুটে পারি না। তো ঠিক আছে, ওকে। অ্যান্ড আমরা এটা নিয়ে এখন চেষ্টা করবো বেশিরভাগই ফেস্টিভ্যালস, অ্যান্ড আমাদের রিলিজটা অ্যানাউন্সমেন্ট খুব তাড়াতাড়ি ডেটের অ্যানাউন্সমেंट আসবে। मेरे ख्याल से स्ट्रगल कुछ नहीं है, बिकॉज देयर इज, जब हम सोच के आए हैं कि हमें ये करना है, तो इट्स नॉट अ स्ट्रगल, इट्स अ एक्सपीरियंस। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये चीज, ये लफ्ज जो इन्होंने बयां किया, ये लफ्ज को एक्चुअली जो कहते हैं कि भाई हम स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो कलकत्ता में हो, चाहे वो मुंबई में हो, चाहे भारत के कहीं पे भी हो, ये जो स्ट्रगलिंग का पार्ट होता है, इसका डेफिनेशन काफी अलग अलग होता है हर जगह, खास करके फिल्मों के लिए। बेसिकली स्ट्रगल या किसको फिर मैं बोला थोड़ा जाता सा है? इंटरप्ट करूँ कि स्ट्रगल जो है हम लोगों के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से, जो दीपान का भी है इसमें, दीपान भी, कि हम लोगों का जो स्ट्रगल है ना वो है फॉर बेटरमेंट, नॉट दैट कि मूवी बनाने के स्ट्रगल है, क्योंकि मूवी ऑलरेडी हम बना चुके हैं, एक नहीं 4 मूवी बना चुके हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कोई स्ट्रगल नहीं है हमारा, फॉर बेटरमेंट, कि बेटर मूवी बनाने के लिए, बड़ा मूवी बनाने के लिए, अच्छा मूवी बनाने के, इसके लिए जो स्ट्रगल है वो हमारा है, और वो पैशनेटली। बेसिकली मैं यही इस पे काटना चाहता हूँ, स्ट्रगल है ही नहीं। स्ट्रगल वर्ड कब यूज होता है? जब हम सोचते हैं इसको कि बहुत कुछ हो जाएगा, ये करना है, वो करना है। लेकिन देखो, जब हम सिर्फ प्रोफेशन के लिए फिल्म नहीं चूज किए, इट्स आवर पैशन आल्सो, And that's definitely something. And the first priority. This is the first point and first priority. যেমন ভাবে একজন অডিয়েন্সের কাছে শুধুমাত্র ফিল্মটা এন্টারটেইনমেন্ট পারপাস নয়, তার সাথে তার একটা সোশ্যাল কজও আছে, সেরকম ভাবে একজন ফিল্ম মেকার বা একজন ডিরেক্টর, এভরিওয়ান, मतलब जो এই পুরো ফ্র্যাটার্নিটিতে যারাই আছে তাদের কাছে আমার মনে হয় এটা ইটস নট আ স্ট্রাগল, ইটস আ এক্সপিরিয়েন্স, ইটস আ জার্নিতে চড়াই উতরাই এভরিথিং ইজ देयर, so we enjoy our journey. So now from that perspective, अगर ये देखा जाए कि एक तरह से बूंद सही तरीके से एक ऐसा फीचर फिल्म जो फीचर फिल्म के रूप में आने वाला है बूंद, तो इसमें एक सोशल मैसेज भी है इसमें। बहुत। तो अब अगर हम बूंद का एग्जांपल लेते हैं, एक फीचर फिल्म के तरह जो आने वाला है, इसका कोई एक खास एलिमेंट अपार्ट फ्रॉम जो कि आपने ऑलरेडी अपने बयां किया इस चीज के ऊपर कि किस तरीके से ये चीज हो रही है, तो बेसिकली फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर हम देखा जाए, सब्जेक्ट मैटर क्लियर है, लेकिन बूथ के कुछ ऐसे घटनाएं जो कि आपको हमेशा याद रहेगा। तो बहुत सारा है, पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो एक्चुअली कॉन्सेप्ट के साथ सिंक हो गए थे, जब हम शूट कर रहे थे बुंदेलखंड और एमपी का एक बहुत रिमोट विलेज, जो बेसिकली ट्राइबल विलेज थे, छोटा एक विलेज है, वहाँ पे अभी भी बहुत सारे फैसिलिटीज नहीं है, उसमें पानी तो बिल्कुल ही नहीं है, पानी का फैसिलिटीज बिल्कुल नहीं है। तो वहाँ पे शूट में बहुत सारा हो गए थे। 10 दिन 15 दिन के बाद एक दिन सुबह हम जब पहुँचे सेट पे, तो उस दिन पता चला कि उस दिन हमें एक भी बूंद पानी नहीं मिलेगा पूरा दिन पीने के लिए। That's interesting. तो फिर क्या हुआ? तो उसमें तो पूरा जो होता है, मतलब इंसान है, पानी के बगैर कैसे हम शूट कर सकते, सब लोग तो हिल गए थे, पूरा क्रू हिल गए थे। तो हम वही सोचे कि क्या क्यों नहीं मिलेगा, तो क्या है ना, कुछ बोला कि कुछ शादियाँ चल रहे थे उधर, तो पानी का इतना क्राइसिस है, तो नॉर्मल पानी उन लोगों का जो होता है वो तो अलग चीज़ है, पर हम बॉटल से पी रहे थे, हम खरीद के पी रहे थे, तो वो नहीं मिलेगा, बिकॉज 2-3 शादियाँ है तो पूरा पानी उधर चले गए।
तो इसलिए पानी नहीं मिलेगा, पूरा दिन शूटिंग करना पड़ेगा। तो फिर वो बूंद बूंद पानी हाँ, के तो लिए उस दिन तरसना लग रहा पड़ता था, है। उस दिन लग रहा था, उस दिन रंजीत सेन फ्लोर में नहीं थे, पर उस दिन लग रहा था कि एक ऐसा न्यूज निकलना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि बूंद करने आए हैं हम और एक बूंद पानी भी नहीं मिल रहा है हमें। तो ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है। फिर उन लोगों का जो पानी होता है जो हम उधर जाके पी भी रहे थे, वो पीने के लायक, मतलब हमारे लिए थोड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि हम शूट वूट कर रहे थे, तबीयत भी ख्याल रखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा टेंशन आ गए थे, पूरा फ्लोर को टेंशन आ गए थे। फिर हमारा जो प्रोड्यूसर साहब है वो गाड़ी लेके निकल चुके थे कि कहाँ पानी मिलेगा। वहाँ से 70 किलोमीटर दूर जाके छतरपुर बोल के एक जगह है एमपी का, पन्ना क्रॉस करके, वहाँ से फिर भर के गाड़ी में भर के बोतल लेके आया और वो लंच के टाइम, मतलब 2 बजे 2:30 बजे तक टाइम वो पानी लेके आया। उसके बाद सबका जाना है कि नहीं चलो अभी शूट हो सकता है। तो दिस इज अ वेरी रिलेवेंट एंड इंटरेस्टिंग चीज़। बिकॉज टॉपिक के तौर से अगर देखा जाए तो बेसिकली ये एक तरह से पानी की अहमियत को दिखाती है। सो इन अ वे इट्स समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग। बूंद में सबसे बड़ा बात जो हुआ था कि एक इस टाइप के जब मूवी हम करने जाते हैं, मैंने पहले ये बताया कि बॉलीवुड इज फॉर कॉमर्शियल मूवी, इट्स नॉट फॉर आर्ट मूवी। तो इस टाइप का जब आर्टिस्टिक मूवी हम करने जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रगलिंग खड़ा होता है। मतलब एक तो प्रोड्यूसर मिलना, उसके बाद टीम खड़ा करना, क्योंकि हम जो जहाँ पे शूट कर रहे थे वो बहुत ही इंटीरियर थे। हम खाजुराहो में गए थे, बट खाजुराहो इस फुल्ली सब कुछ है वहाँ पे, पर हम जहाँ पे शूट कर रहे थे इट्स पन्ना फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें नहीं मिल सकती। और एक बात क्या हुआ था कि यहाँ पे पूरे टीम और इवन प्रोड्यूसर जो विजन लेके हम लोग गए थे कि हमें शूट करके आना है, वो विजन कंप्लीट। आई थिंक आप भी थे, आपको भी मालूम पड़ा, आपने भी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिला, पर आप भी एंजॉय करके शूटिंग। ये जो बात था ना कि हर पूरे टीम में हर लोगों के अंदर ये एनर्जी था कि भाई हमें शूटिंग खत्म करना है, कुछ भी हो जाए। और सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि सबको बैक ऑफ द माइंड यही काम कर रहा था सब लोग कि नहीं, ये बूंद है, ये पानी के ऊपर मूवी बन रहा है और अच्छा सबका अच्छा इरादा है, सोशल मैसेज के लिए बन रहा है, फेस्टिवल्स के लिए बन रहा है, सारा चीज़ सब बैक ऑफ द माइंड लेके फ्लोर में थे। तो दैट्स वाई नो इरिटेशन। इरिटेशन आता है पर रात को आता है, पर फ्लोर में जाके नो इरिटेशन। तो दिस इज द सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो दीपायन बोलेगा, जो गर्मी जो हम शूट कर रहे थे उसका टेम्परेचर, और 2-3 इंसिडेंट भी है, उसमें से एक इंसिडेंट एटलीस्ट खदान वाला इंटरेस्ट नहीं, मतलब क्या हुआ था वहाँ पे बेसिकली जब हम शूट कर रहे थे तब मोरलेस नॉर्मल टेम्परेचर ही था 55 to 58 डिग्री के आसपास। और बहुत ज्यादा, हाँ, मतलब कैमरा का तो और भी पड़ता, 2 घंटा कैमरा ऑफ थे और वो खदान थे। हाँ। मतलब ऐसे डीओपी टच नहीं कर पा रहे थे कैमरा को, जैसे टाइप में जैसे जल गया, हाथ जल जाता है, ऐसे टाइप का हो रहा था। पर एक बात मैं कहूँगा, जब आप इस टाइप के फिल्म बनाने चल जाते हो ना, तब आपको ये सब कुछ छोड़ के या मतलब यू लाइक का मॉन्क, आपको एक सन्यासी का जिंदगी करना चाहिए, अदरवाइज आप इस टाइप का फिल्म कभी बना नहीं पाओगे। और इरिटेशन तो फिल्म में होता ही नहीं है, क्योंकि उस दिन का ही वही इंसिडेंट है कि जब हम रात लौटे तो जो कैमरे के पर्सन थे वो बोला कि आप लोग जिंदा कैसे लौट गए, क्योंकि 57 दिखा रहा था कैमरा में, 57-50 टेम्परेचर, तो नॉर्मल में आपका एटलीस्ट 56-55 दिखाएंगे, तो वहाँ पे जिंदा तो नहीं रह सकते आप लोग। पर हमें फील नहीं हुआ था। आई एम श्योर ये चीज फिल्म के जब फिल्म बन के आएगी, ये जो आप लोगों का जितना आप लोगों ने पसीना बहाया एक तरह से, वो चीज फिल्म के रूप में बहुत अच्छी तरीके से সামনে আই দ্য মোস্ট মানে আলটিমেট থিং কি আগে। এবং আরেকটা জিনিস আমি দর্শকদের জানিয়ে রাখি যে এই ফিল্মটা এখন রিলিজ হয়নি, রিলিজ হওয়ার মুখে, কিন্তু রিলিজ হওয়ার আগেই কিন্তু এনাদের কাছে আরো অফার চলে এসেছে হিন্দি ফিচার ফিল্ম করার জন্য। একটু যদি এই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে পারেন। नेक्स्ट हमारा बैक टू बैक 2 फिल्म है जो ऑलरेडी साइंड है और 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा, गॉड नोस। तो वो भी इट्स नॉट दैट कि छोटा मूवी है, इट्स अ बिग मूवी एंड बिग बिग स्टार कास्ट। पूरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते, नेक्स्ट इंटरव्यू में हम करेंगे ज़रूर। पर पता नहीं, सभी तो एक जर्नी होता है, हम जर्नी की तरह उसको सोचते,
पर आई थिंक 2023 में इट्स बिग न्यूज़ फॉर अस कि हम लोगों की और एंड बांग्ला विल बी प्राउड ऑफ यू थैंक यू बिकॉज दैट्स समथिंग व्हिच इज वी विल ट्राई कि बांग्ला ऑलवेज प्राउड करे जेनी दीपायन के ऊपर। हमारा इंस्टीट्यूट जो है वो लोग भी सोचे कि नहीं यहाँ से निकल के वो लोग बहुत कुछ किए, तो हम कोशिश करते हैं वही, क्योंकि अभी दीपायन ने बोला कि वी आर पैशनेट फॉर फिल्म मेकिंग, नॉट फॉर मनी, नॉट फॉर ग्लैमर, नॉट फॉर अदर थिंग, सिर्फ पैशन के लिए हमने यहाँ पे चूज़ किया था ये प्रोफेशन, एंड पैशन के लिए अभी भी जा रहे हैं और आगे भी आई थिंक पैशन के लिए। हमने जो ये प्रोफेशन चूज किया था, इट्स नॉट बाय अदर चॉइस, इट्स बाय आवर चॉइस। सो ये हमारा डिसीजन था, ये कोई डिसीजन थोप नहीं दिया है कि ये करना पड़ेगा। सो वी हैव टू एंजॉय, और हम के हर चीज़ों में एंजॉय करते हैं। और अभी तो हम बूंद बनाए, हम चाहेंगे कि बंगाल से आके हम यहाँ पे जब बूंद बना लिया तो सागर भी बना लेंगे। सागर भी बना लेंगे। हाँ, वही मैं कहने जा रहा था कि बूंद तो हो गया, से सागर होता है, बूंद से ही सागर, Exactly. एग्जैक्टली। एक चीज अभी आपके पास 3 हिंदी फीचर फिल्म ऑलरेडी है हाथ में जो आप शुरू करने वाले हैं विद बिग स्टार्स। इस बीच इस दौरान अगर बंगाल से कोई आपके पास एक ऑफर आए फिल्म बनाने के लिए, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे उसको करने के लिए? ऑब्वियस ना, वो तो ऑफर है ऑलरेडी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो हम आने के बाद से बहुत सारे ऑफर है। पर एक टाइम का होता है कि हम अगर बंगाल में फिर से टाइम देंगे तो इधर टाइम कर देंगे, तो उसमें हमने चॉक आउट किए कि थोड़ा सा हम गैप लेते बंगाल से और यहाँ पे कंटिन्यू ज़्यादा करते। पर बंगाल इज़ रूट, हमेशा हम चाहते कि हमारा जो दिल का मूवी है वो हम बंगाली में ही बनाएं और आगे भी जाके बिल्कुल वही बनाना चाहते हैं, और दीपायन तो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। मतलब बेसिकली देखो, अभी बंगाल में बंगाली फिल्म जिसके लिए जाना जाता है कल्चर, हमारा एजुकेशन कल्चर सब बंगाल से है, हमने पढ़ाई उधर से की है, तो हम बंगाल को तो कभी भूल नहीं पाएंगे, अलग भी नहीं कर सकते। और सेकेंड थिंग, हाँ, अगर कोई अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा स्टोरी बंगाल से मिले जो है हमारे पास, हम उस पर भी काम करेंगे तो ऑब्वियसली हम करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि वो तो करना ही है। और एंड फ्यूचर वी ऑल्सो थिंक अबाउट इट कि अगर यहाँ पे अच्छे हम ब्रांडिंग कर ले अपने आप को, अगर भगवान के बाय गॉड ग्रेस हम लोग एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए, वो तो आप पहुंच चुके हैं हाँ, ऑलरेडी, और भी मतलब एक ही अभी एक के बाद फिल्म आ रहे हैं आपके पास हिंदी के। बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये ऑप्शन आए कि हम प्रोड्यूस करना चाहें तो हम ऑब्वियसली पहले बंगाली फिल्म प्रोड्यूस करेंगे, एग्जैक्टली, नॉट हिंदी फिल्म, क्योंकि वो जो এই কথাটা আমার মাথায় রাখতে হবে কিন্তু কি বললেন। जो बंगाल में बहुत सारे टैलेंट है, जो टैलेंट को हम अगर आगे लेना चाहते हैं तो एज ए प्रोड्यूसर भी हम कर सकते हैं, वो थोड़ा बैक ऑफ द माइंड हमारे पास है ऑलरेडी। बिकॉज सो বাঙালি মানে ক্রিয়েটিভিটি, एग्जैक्टली, এখানেও মানে সেটা বাংলার রুটেই আছে বলতে রুটেই পারেন। बांग्ला बांग्ला होते हैं। এক তো বাংলার কানে যদি আমার ধরা যায়, বাংলার কানে হচ্ছে কিশোর কুমার, মানে গলায় কিশোর কুমার, কানে আর ডি বর্মন, আর থিঙ্কিং এ ঋত্বিক ঘটকন সত্যি। আই থিঙ্ক পুরো বাংলার একটা যাকে বলে সম্পূর্ণ রূপ একটা কালচারের সাইড থেকে দীপায়ন দিল আমাদের। तो अब अगर आगे का मुंबई का हम बात करते हैं, आई थिंक आपने तो बहुत सारे क्वेश्चंस किया, हमारे मन में भी एक क्वेश्चन है आपके, आपने तो बूंद में काम किए, एक अच्छा इंटरव्यू है, तो वो what भी is your मतलब experience? हाँ, वो भी बिग एक्टर के साथ, Actor के साथ। और ऐसा है कि लीड एक्टर जो दो मेन है उसके देखिए, साथ क्या अगर- सीन था। এটা কিন্তু উল্টো হয়ে যাচ্ছে। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। প্রশ্ন আমি করছি উল্টো, আমার কাছে नहीं, প্রশ্ন আছে। नहीं, যাই হোক, আপনারা দেখুন इसलिए- এখন। इसको अलग गतानुगतिक इंटरव्यू एकदम, इसलिए सजेशन, क्योंकि आपने सिर्फ शूटिंग नहीं की है कि 1 घंटे के लिए, आप पूरा फ्लोर में 20 घंटे के लिए 2 दिन थे, तो उसमें हम दोनों को आपने देखा, तो उसमें आपका क्या लगा? नहीं, आई मैंने फ्रैंकली स्पीकिंग द फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मैंने खुद से इन्वॉल्व किया वो है प्रोफेशनलिज्म। बिकॉज प्रोफेशनलिज्म इज समथिंग, अगर आप पूरी तरीके से उसमें अंदरूनी रूप से घुस जाते हैं तो वो प्रोडक्ट आपका बहुत अच्छा जाएगा, Yes. चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो सॉन्ग हो, Thank you. चाहे वो कोई भी ड्रामा भी हो। Right. तो उस तरीके से अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत अहम चीज़ है जो मैंने नोटिस किया था। और फिल्म का जहाँ तक सवाल है बूंद का, अब जैसे बूंद सामने आएगी बहुत जल्दी तो ऑटोमेटिक ये दर्शक लोग भी उसको पसंद करेंगे, Right. क्योंकि कहानी सच में एक बहुत बड़ा सोशल मैसेज
दे रहा है, Right. और इसके बाद के जो मूवीज हैं Right. वो भी क्या कोई सोशल मैसेजेस के ऊपर मूवी है या वो प्योर कमर्शियल और मूवी? प्योर कमर्शियल मूवी है, पर मैसेज ऑलवेज इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर। सोसाइटी के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई मूवी हम बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रखे, या कमर्शियल हो या पैरेलल हो या शॉर्ट फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्रीज हो, उसमें कुछ ना कुछ रहना चाहिए जो सोसाइटी के लिए मिसाल बन सके कि नहीं, ये देख के किसी को थोड़ा सा भी चेंजेस आए साइकोलॉजिकली तो हमारा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमारा जो बैक टू बैक 2 प्रोजेक्ट है, दोनों कमर्शियल है पर दोनों में सोशल मैसेज है, and दोनों लॉजिकल है। एंड जितना मुझे पता है कि उसमें बड़े स्टार्स भी हैं जो अगले 2 मूवीज आने वाले हैं। मैं ऐसा कोई बात नहीं, वी कैन रिवील केके's name, there is no issue, we have concern। सो हमारे एक प्रोजेक्ट के लिए केके मेरा ने ऑलरेडी हाँ किया है, और एक प्रोजेक्ट में दर्शन कुमार নতুন নাম চলে আসলো, এইভাবেই কিন্তু ইন্টারভিউর মধ্যে আসে। And दर्शन কে কে মেনন অ্যাক্টিং করছেন একটি প্রধান চরিত্রে আগামী নেক্সট যেটি হিন্দি ফিচার ফিল্ম এনারা ডিরেক্ট করছেন। and दर्शन कुमार also, दर्शन कुमार also is there। मैरी कॉम अच्छा, बहुत ही अच्छा एक्टर है, तो उनको भी हमारा स्क्रिप्ट में एग्री है। दोनों प्रोजेक्ट ओके, और जो और भी थर्ड जो सबसे बिग प्रोजेक्ट में है उसका मैं उस दिन एब्सोल्युटली, बिकॉज बट একটা क्वेश्चन মানে जस्ट समथिंग व्हिच इज ऑलवेज दिस थिंग कि हमने डुओ के हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर्स में देखे हैं, Yes. हमने कई जगह पे देखे हैं, लेकिन ডিরেক্টর ডুও ইজ সামথিং উইচ ইজ নট ভেরি কমন। তো এই ডিরেক্টর ডুও কনসেপ্টটা কি করে আপনাদের মধ্যে, মানে আপনারা একত্র হয়ে যে একটা ফিল্ম ডিরেক্ট করছেন, এই ব্যাপারটাতে কখনো কোনো মনোমালিন্য বা কখনো কিছু কনফিউশন বা কিছু কখনো আসে কি? इसमें हिंदी পড়ে বাংলায় বলছি, কারণ পরে আবার হিন্দি হতো। তো এটা কমন নয়, এটা হচ্ছে অলরেডি ছিল আগে, যেটা আমাদেরকে বাংলায় আব্বাস মুস্তান বলা হতো। আব্বাস মুস্তান অলরেডি ছিল, আর মিউজিকে তো বরাবরই ছিল। অ্যান্ড বেঙ্গলে আরও আমাদের আগে ছিল অভিজিৎদা, সুদেশ নাদি, এরা ছিল। বেঙ্গলে এটা ইউনিক ছেলে মেয়ে একসাথে, তো ওরাও সিনিয়র, पर ওরা ওদের সেকশন আলাদা আলাদা ছিল। জেনি দীপায়নের মধ্যে একটা জিনিস আছে, যেটা হচ্ছে আমরা দুজনে একই ইনস্টিটিউটে পড়াশোনা, একই ক্লাস থেকে আমরা ক্লাসমেট ছিলাম, তারপর আমরা খুব আস্তে আস্তে খুব ভালো বন্ধু। আর এখন তো মতলব এত ভালো কো পার্টনার লোক বলে, মানে কি লাস্ট 13-14 বছর হয়ে গেল कि আমরা একসাথে কাজ করছি। तो इस बॉम्बे में ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है कि एक लड़का लड़की दोनों का दिमाग एंड दोनों एक इंस्टीट्यूट से 2 फ्रेंड है, तो कभी झगड़ा नहीं होता? कम्युनिकेशन कैसा है? जो फ्लोर में दिखता है, हाँ, जो फ्लोर में देखते हो तो बोलते बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फ्लोर में हम बात ही नहीं करते, फ्लोर में एक दूसरे मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। तो एक क्वेश्चन बॉम्बे में हमेशा आता है। तो मेरे तरफ से वही है कि एक 14 इयर्स का एक बॉन्डिंग है, जो साइकोलॉजिकली हम दोनों बहुत जुड़ चुके हैं। तो उसमें ज़्यादा बहस होता है, स्क्रिप्ट लेवल में बहुत सारा होता है, पर जब फ्लोर से पहले हमारा सेटलमेंट डन उसमें। और बहुत लोग बोलता है भी, प्रोड्यूसर बोलता है अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप दोनों कैसे काम करते हो। हाँ। ठीक है, तो और बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं अच्छा इन दोनों में से कौन मेन है कौन मेन नहीं है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो दीपान का भी सेमी मेरा ख्याल से फिल्म मेकिंग मतलब ये बात ऐसे डीप में जाके मत सोचिए, फिल्म मेकिंग इज लाइक अ कुकिंग। और एक तो बंगाली लोग कुकिंग पसंद करते हैं, बंगाली लड़के लोग, मैं भी कुकिंग बहुत पसंद करता हूँ, हम दोनों बहुत। कुकिंग में क्या होता है ना, हमें मसाला ওই মাছ দিয়ে শস্য বানাটা খাবো, হ্যাঁ, তারপরে जैसे যদি মাছ এবং রান্নাটা তুমিই করবে। Right, আচ্ছা, right, হ্যাঁ, right. তারপর এবং এই রান্নার জায়গা থেকে যদি বলি একটু মজাদার ব্যাপারটা কি, যে রান্নাতে সব ধরনের স্পাইস, সব ধরনের থিং লাগে, मतलब হলুদটা, নুনটা, এভরিথিং প্রপার ইয়ে করে করতে, টক ঝাল মিষ্টি সব ধরনের একটা আসা উচিত, मिश्रण। स्पाइसेस कितना किसमें डालना है वो पूरा जो। तो फिल्म में भी क्या वो चीज वही एक तरह से कौन सा जगह पे क्या एग्जैक्टली फ्रॉम दैट एग्जैक्टली फ्रॉम पर्सपेक्टिव। दैट पर्सपेक्टिव एक जन के लिए लिमिटेशन होता है। मतलब अगर मैं ये बोलूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरे लिए सब फ्लेवर मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ऐसा होता नहीं। हर आदमी के, हर पर्सन का कुछ लिमिटेशन होता है। तो हम दोनों में एडवांटेज यह है, अगर मैं टॉप मतलब मैं सावर करता हूँ तो झाल लेता है तीखा, अगर मैं मीठा सोचता हूँ तो कड़वा सोचता हूँ। तो ये जो ऑपोजिट्स अट्रैक्ट ईच अदर। Yes, cooking also। हाँ, मतलब मैं हाँ, बोलूँ हाँ। दीपान इज अ वेरी मतलब एज ए ये मैन बहुत ही अच्छा कुक है,
सब लोग बोलते हैं फ्रेंड्स सर्कल में, तो उसमें भी एक ही चीज होता है, नमक हमेशा मुझे टेस्ट करना पड़ता है। जो भी कुकिंग करता है अरे नमक कैसा है, तो वो मतलब वो शायद जानबूझ के नहीं तो साइकोलॉजिकली नहीं होता है। तो फिल्मों में भी ऐसा होता है कि 2-3 पार्ट होता है जो मुझे ही डिसाइड करना पड़ता है, 2-3 पार्ट है जो उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो दैट्स इज द पार्टनरशिप प्रोसेस एंड इट्स अ फिल्म मेकिंग ऑलवेज अ ग्रुप वर्क। अगर हम टेक्निकली सोच रहे हैं तो जेनी क्रिएटिविटी exactly. तरफ से सोच रहा है, कास्टिंग पूरा जेनी देखभाल करती है। और मैं ज्यादा इमोशनल रिलेशनशिप सोचती हूँ तो वो ज्यादा थ्रिल सोचते हैं, मर्डर सोचते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, हम दर्शक को ये कमेंट कर सकते हैं कि भाई हम एक पिक्चर में, एक पैकेज में हम आपको सब कुछ अच्छा फ्लेवर दे सकते हैं, क्योंकि हमारे दोनों का डिफरेंट पॉइंट टेस्ट और वो टेस्ट एक साथ मिलके एक अच्छा टेस्ट बन सकता है। नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है कि इन अ वे दोनों लोग बंगाल से आए, फिल्म करके आए, डायरेक्ट करके आए, उसके बाद आके यहाँ पे अपना, अभी हम कह सकते हैं कि सख्त जमीन पे हैं, क्योंकि ऑलरेडी एक फिल्म बन चुका है जो कि रिलीज के कगार पे है, और उसके अलावा 2 और फिल्म अभी शुरू होने जा रही है। तो उस लिहाज से एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब मुंबई में जिसे कहते हैं कि पैर आप जमा चुके हैं, और आगे के लिए हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। तो हमारे फ्लिक्सबग सिने के दर्शकों के लिए अगर आपके पास कोई मैसेज हो, प्लीज काइंडली। दर्शकों के लिए मेरा मैसेज होगा, एज ए पर्सन, दर्शक मतलब लोगों का जो जर्नी होता है, लाइफ का जो जर्नी है, तो लाइफ जर्नी आप करते रहिए। एंड अगर आप चाहते हो कि फिल्म के थ्रू, फिल्म मेकिंग के थ्रू, एक्टिंग के थ्रू, जो फिल्म इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू अगर कुछ करना चाहते तो जरूर कीजिए, जर्नी फिक्स कीजिए। ये मत सोचिए कि कौन ऊपर जा रहा है, कौन नीचे जा रहा है, कौन सक्सेसफुल है, कौन नहीं है। सिर्फ चलते जाइए, जर्नी फिक्स कीजिए, खुद का स्टोरी क्रिएट कीजिए, अपना स्टोरी। आप जो लाइफ में एंड में जब आप सोचोगे तो आपने पीछे क्या किया वो आप देखोगे, खुद का एक स्टोरी आपने बनाया, जो स्टोरी कभी फिल्मों में भी आ सकता है, तो वो आप करो। और विदाउट हेल्प, विदाउट बैकबोन, विदाउट बैकअप, विदाउट गॉडफादर, जो भी बोलते हैं, दिस इंडस्ट्री इज वेरी टफ। पर अगर आपका इरादा सही हो और आपका पैशन सही हो तो जेनी दीपान हमारा कोई बैकअप नहीं है, हमारा कोई गॉडफादर नहीं है। हम लोग के लिए कोई ज़्यादा प्रेशर भी नहीं करता कि आप लोग करो, पूरा हम मेहनत से किए, जो भी किए, और आगे भी हम मेहनत से ही करेंगे और दुगुना मेहनत करेंगे और हम खड़ा हो जाएंगे। तो आप लोग भी कर सकते हो, आप लोग भी करो। और बहुत हाँ बताइए। एक मैसेज मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि विदाउट ऑडियंस एवरीथिंग इज अधूरा है। राइट। क्योंकि आप ही भगवान हो, हम बनाते हैं जो भी चीज़ वो आपके लिए बनाते हैं, हम खुद घर पे बैठ के देखने का कोई फायदा तो है, आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ, आज के डेट में बहुत सारे एडवांटेज आ गए हैं। हम जब फिल्म एजुकेशन लिए थे तब बहुत सारे लिमिटेशन था, पर आज के डेट में इट्स अ वेरी इजी। और ये मत सोचिए कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। आपको अपना एक अचीवमेंट, एक गोल सेट करना है और उसको चलते जाना है। बिकॉज ये सोच लेना कि यू आर जस्ट अ प्लेयर, कोई और खेल रहा है ऊपर से। अच्छा कुछ बनाएंगे तो फ्लिक्सबग जरूर उनको दिखाएंगे और অলওয়েজ সাথ में रहेंगे। তো আপনাদের দর্শক সকল, আপনাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে আজকে আমার সঙ্গে জেনি এবং দীপায়ন দুজনে রয়েছেন মুম্বাইতে। অশেষ ধন্যবাদ, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে দেখে। And the last 3 cheers for Flixbug. 3 cheers for Flixbug. Yeah.